খবৰলৈ আহিছো এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড স্বামীয়ে সংগঠিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড বন্ধুৰ সৈতে নৈশ যাপনৰ বাবে হেঁচা দিলে পত্নীক এই মুহূৰ্তৰ এটা আচহুৱা কাণ্ড এটা ভয়ংকৰ জঘন্য কাণ্ড আমি আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ স্বামীয়ে সংগঠিত কৰিলে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড বন্ধুৰ সৈতে নৈশ যাপনৰ বাবে হেঁচা দিলে পত্নীক সন্তান লাভৰ আশাত পত্নীক হেঁচা দিলে বন্ধুৰ সৈতে নৈশ যাপন কৰিবলৈ বন্ধুৰ সৈতে নৈশ যাপন কৰিবলৈ পত্নীক পঠিয়ালে পত্নীক হেঁচা দিলে স্বামীয়ে স্বামীৰ কুকাণ্ড সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা স্বামীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা স্বামীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড স্বামীৰ প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱাৰ বাবে সংগঠিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধুৰ সৈতে পত্নীক নৈশ যাপন কৰাৰ বাবে হেঁচা নিৰ্লজ্জ স্বামীৰ প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱা পত্নীক দিলে তালাক স্বামীৰ প্ৰস্তাৱ মানি নললে পত্নীয়ে আৰু তালাক দিলে 2014 চনত লখিমপুৰৰ আব্দুল বাছাৰৰ সৈতে বিয়া হৈছিল গুজৰাটৰ এগৰাকী যুৱতীৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্বামীয়ে পত্নীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল 6 লাখ টকা পৰ্যন্ত যৌতুক দাবী কৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ অৱশেষত লালুক আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী মহিলাৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা স্বামীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড স্বামীৰ প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱাৰ বাবে সংগঠিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড বন্ধুৰ সৈতে পত্নীক নৈশ যাপন কৰাৰ বাবে হেঁচা দিলে নিৰ্লজ্জ স্বামীয়ে স্বামীৰ প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱা পত্নীক দিলে তালাক এটা অতি জঘন্য কাণ্ড এজন নিৰ্লজ্জ স্বামী সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবে বন্ধুৰ ওচৰলৈ পঠিয়ালে পত্নীক বন্ধুৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই নৈশ যাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে পত্নীক ক'লে নৈশ যাপন কৰিবলৈ বন্ধুৰ সৈতে আৰু পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানি নললে মানি নোলোৱাৰ বাবে স্বামীৰ নিৰ্লজ্জ এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰস্তাৱটো মানি নোলোৱাৰ বাবে পত্নীক দিয়া হ'ল তালাক আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জঘন্য নিৰ্লজ্জ কাণ্ড কি হৈছে ৰাজ্যত সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা স্বামীয়ে পত্নীক পঠিয়ালে বন্ধুৰ ওচৰলৈ বন্ধুৰ সৈতে নৈশ যাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে পত্নীক দিয়া হ'ল তালাক আৰু যৌতুকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই নিৰ্লজ্জ পাখণ্ড স্বামীৰ বিৰুদ্ধে আৰু পত্নীক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু নিৰ্লজ্জ স্বামীৰ নাম হৈছে আব্দুল বাছাৰ লখিমপুৰৰ আব্দুল বাছাৰ 2014 চনত লখিমপুৰৰ আব্দুল বাছাৰৰ সৈতে বিয়া হৈছিল গুজৰাটৰ এই দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকী আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ এটা নিৰ্লজ্জ খবৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা স্বামীয়ে পত্নীক পঠিয়ালে বন্ধুৰ ওচৰলৈ বন্ধুৰ সৈতে নৈশ যাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে আৰু সেই প্ৰস্তাৱ অস্বীকাৰ কৰিলে পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে পত্নীক দিয়া হ'ল তালাক अपने खाला के लड़के के साथ में शादी करे मैं गुजरात की हूँ मेरा नाम बेबी मुमताज़ है तो मेरा खाला का लड़का 2014 में मुझसे शादी किए शादी करने के बाद मुझे लालू जुबनगर में लेके आए अब मैं फिर 5-6 महीने अपने घर में रही रहने के बाद में वो मुझे वापस गुजरात लेके चले गए गुजरात में मैं रहने लगी और फिर मेरा ऐसा करके शादी को 2-3 साल हो गया होने के बाद में फिर हम लोग ने अपना चेकअप कराया कि क्यों बाल बच्चा नहीं होता है तो ऐसे चेक कराया तो बाद में मालूम पड़ा कि मेरे आदमी में खामी है लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं बोलता है और मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं जो उनसे पूछूँ तो फिर मैंने बोला कि क्या हुआ क्यों बच्चा नहीं होता तो उन लोग ने बोला कि तुम में कुछ कमी है ऐसा बोला तो ऐसे बोलने के बाद में फिर हम लोगों का आसाम में आने का बात हुआ तो वो बोलते कि जाने से पहले मेरा नपुंसक मतलब मेरा अंदर का जो आदमी बना नहीं मालूम सबको पड़ जाएगा तो एक काम करो कि तुम मेरे दोस्त के साथ में रिलेशन करना पड़ेगा उसके बाद में तुम्हारे अगर जो मतलब तुम मेरे जो हस्बैंड के साथ में
सोना पड़ेगा ऐसा बोले मुझे। ऐसा बोल के पहले मैंने बोला कि नहीं ये सब मैं नहीं करूँगी। उसके बाद में मेरा हस्बैंड ने मुझे गला ऐसा दबाया जैसे मेरा ज़बान और मेरा आँख निकल गया था। तो फिर मेरे को बाजू वाला ने बोला कि ये कुछ मारपीट हो रहा है ऐसा बोल के आए। फिर आने के बाद में ऐसा कुछ 6 महीना 7 महीना जैसा हुआ। होने के बाद में उन लोग क्या बोले मेरे मम्मी को पेट में पथरी हुआ है तो मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा। तो मैं बोला मुझे भी लेके जाओ। बोला नहीं मैं भी आ जाऊँगा बोलते। ऐसे बोल के वो 2020 को वो चले गए मुझे छोड़ के। मार्च का ये था तो मैं बोले कि मैं जाऊंगी। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में मैं लॉकडाउन में वहीं अटक गई और वो मुझे लेने के लिए नहीं आया, लेकिन फ़ोन में बोला तुम मेरी बात मानेंगी। और उसके बाद में यही बात बोलते थे कि मेरे सास ने भी डिमांड करते थे। जब मेरे 6 महीना बाद शादी करके जब मैं आई थी तभी मेरे सास ने डिमांड किया था कि 6 लाख का डिमांड किया था। तो 6 लाख का भी डिमांड किया था और फिर मेरा हस्बैंड का मतलब कमी को मतलब मालूम पड़ जाएंगे। 6 लाख का दहेज का डिमांड किसने किया था? मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड ने। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि मेरे माँ का डिमांड को पूरा कर दो, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद में वो मुझे 3 साल तक छोड़ के रख दिए। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने अपना गुजरात के कोर्ट में मैंने केस दी। केस देने के बाद में मैंने तो केस को बजाने के लिए खुद भी यहाँ पे आया क्योंकि उन लोग बोलते थे कि ऐसा शख्स है ही नहीं। उसके बाद में मेरे अम्मी के साथ में आए। आने के बाद में यहाँ का मैं पुलिस थाना में आई तो वो पुलिस थाना में मतलब मेरा केस को मतलब बजाने के लिए साइन कर दिए। फिर उन लोग गुजरात जाने के बाद में फिर मैं वापस इधर आई। 3 3.5 साल का मैं वापस आई। आने के बाद में मैं अपने ससुराल गई। तो ससुराल में से पीछे के दरवाजे से मैं आ रही थी तो मेरा हस्बैंड और मेरी सास मुझे धक्का मार के निकला, सीना में मार के। उसके बाद में मैं अपने चाचा के मतलब मैं उनके चाचा मेरे चाचा ससुर के घर में मैं 2 दिन रहे। उसके बाद में आने के बाद खूब मारपीट करे और उसके बाद में मुझे 3 तलाक दिए। 3 तलाक देने के बाद में फिर मैं सोची कि क्या, फिर मैं यहाँ पे आके मैं बोले आप लोग मेरा केस लो। मेरा तो बोला नहीं आपका केस तो गुजरात में चल रहा है। तो मैं बोला वो तो कोर्ट में चल रहा है, मेरा वो केस चल रहा है, कोर्ट का केस चल रहा है। मैंने उन लोगों के इसलिए ये सब बात नहीं बोला क्योंकि मेरा खुद का ये निजी मामला था। लेकिन आप लोग मेरा मदद करो क्योंकि ये बात उन लोग ने ऐसे बहुत खराब मेरे साथ में ऐसा हरकत किया हुआ है। और मेरे हस्बैंड इतना गंदा, मेरा खाला का लड़का है, वो कोई गैर भी नहीं है, खाला का लड़का। और मेरी माई और मेरे खाला और मेरे खालू मुझे बहुत अत्याचार